Assalamu alaikum, Pakistan. Welcome to the One to One podcast. Joining me today is Mariam Naseem. Mariam Naseem is one of Pakistan's powerlifters hailing from KPK. She is currently living in Melbourne, Australia. And Mariam, it's an honor to have you on the podcast. And I'm so Thank you so happy much. that you can join. पहली बात पाकिस्तान में बहुत हैंडफुल लोग हैं जो इस स्पेसिफिक फील्ड में होते हैं एंड स्पेसिफिकली गर्ल्स इस तरह कोई मतलब दो तीन ही एथलीट्स है पाकिस्तान में जो पावर लिफ्टर्स हैं जो फीमेल पावर लिफ्टर्स है सो मैंने सबसे पहले सवाल पूछता है दैट you're a good looking girl आप मॉडल बन सकती थी आप you had so many options but why did you specifically choose powerlifting? That's actually a very good question. तो जब मैं मतलब शुरू में ना like I was just exploring different things. ठीक है ना कि मुझे करना है अपनी जिंदगी के साथ. Because I am someone who's very very curious. तो मैं हमेशा different चीजें try करती रहती हूँ. और मैंने ना एक टाइम पर मॉडलिंग स्टार्ट की थी और मैं ऑस्ट्रेलिया में मतलब काफी मैंने काम किया है एज अ मॉडल. Okay. But then मेरी जो पर्सनालिटी है ठीक है ना वो उस फील्ड के लिए बिल्कुल भी नहीं है. Like film industry, modeling, television, उसके लिए बिल्कुल सूट नहीं करती है because I am brutally honest. Wow. And जो मेरे दिल में आता है वो मेरे मुंह पर है और I'm not a politically correct person. Okay. And I was finding मैं हर वक्त frustration में ही रहती थी because आप जो हो अगर आप कुछ कहना चाहते हो ठीक है ना आपने इतने लोगों से काम निकालना होता है तो you actually can't do that. Yeah. उस इंडस्ट्री में. Yeah. Because you're heavily relying, आपकी सक्सेस बहुत ज्यादा रिलाय करती है दूसरों के ऊपर. True, exactly. ये चीज मुझे ना पसंद नहीं थी कि मेरी सक्सेस जो है मेरी सक्सेस का ताल्लुक मेरे हार्ड वर्क से होना चाहिए. मेरी सक्सेस क्यों इतनी और चीजों के ऊपर मतलब डिपेंड कर रही है. अगर कोई गलत बोल रहा है तो I should be able to call him out. Yes. Why do I have to hold back? So I was really struggling with that and at one point I was like, you know what, fuck it. True. I'll never be happy. So usko maine chhod diya and they like fitness was always part of my life even when I was in Pakistan. Okay. So I was always like in some kind of matlab kisi na kisi sport ka main hamesha se part rahi hu. Okay. And then I was seeing this guy at the time and he sort of recommended that I should actually like pursue this is cheez ko properly main pursue karu as a career. And I was like yeah and it's a good idea. So that's how it all started. Okay, so did you? So you were basically in Melbourne, Australia, when you started your entire fitness journey, not in Pakistan. This powerlifting, I mean. Powerlifting in Melbourne, yes. Okay. हाँ बिल्कुल Melbourne में हाँ. And it's very recent. इतना पुराना नहीं है. Like I've only been powerlifting like for not even 2.5 years. मतलब 3 साल भी नहीं हुए हैं. Okay. And you've competed once in this, and you've won a bronze medal, right? How long ago was that? 3 times. I've actually completed 3 times. Okay. और फिर अभी I was actually very very close to competing, but things didn't work out because of my work and everything. So I was like, you know what, that's fine. Okay. I'll just continue. मैं अपना program वगैरह follow कर रही हूँ, but next time when I want to compete, I actually want to like I'm trying to chase really big numbers. Okay. I just don't want to compete for the sake of competing. So I was like, you know what, that's fine. I've got more time to train. Yeah. And yeah, next time when I compete, inshallah, I'll be able to hit some good numbers. So basically, आप अभी you're training smarter rather than just speeding the process up and competing. अच्छा मैंने पूछना था कि अब आपने पाकिस्तान की सारी सिचुएशन देखी भी है कि इधर ट्रेनिंग फैसिलिटीज कैसी हैं which are not bad by the way. इधर ना काफी ज्यादा एक्सपोजर हो गया है. Fitness is growing on a very high scale these days in Pakistan. So how do you compare to Australia? The fitness regime, the help, the trainers, the knowledge over there. How is it different from here in Pakistan and how does it give you an edge एक तरीके से? I 100% believe that yes, I'm definitely ahead. Okay. I may not be the strongest. Yeah. But our techniques are like जिन लोगों के साथ हम लोग train करते हैं. Yes. मतलब they're just so amazing. And I'm not trying to belittle anyone or put anyone down. That's definitely not the case because I know, especially in Karachi and Lahore, matlab there is some really good work happening. कराची और लाहौर में तो बहुत ज्यादा KPK में तो कुछ भी नहीं हो रहा. तो even इस्लामाबाद में भी काफी अच्छा काम हो रहा है. But again, when it comes to knowledge and things like that, बहुत पीछे हैं, behind है. Like, मैं लोगों को follow करती हूँ अपने Instagram के ऊपर और अपने social media platforms के ऊपर.
और मैं देख रही थी उनके, आप देखते हो ना आप उनकी ट्रेनिंग रेजिमेंट और वो सारी चीजें आप देख रहे होते हो, लाइक यू आर ऑब्जर्विंग कॉन्स्टेंटली. तो देयर इज अ वेरी मैसिव जैसे बोलते हैं कि गैप है. बट लुक, गुड थिंग इज कि आई फील मतलब कि मूवमेंट हो रही है, सो दैट जस्ट मींस कि लोग पहुंच जाएंगे. एक पॉइंट पर मुझे एक्चुअली पाकिस्तान में मेरा एक फ्रेंड है जो कि मुझे कोच कर रहा था. ओके, कौन? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. Pardon? नहीं, I'm saying who's your coach in Pakistan? तो ये बंदा जो है कोई क्वालिफाइड कोच नहीं है, बट अच्छा, ही जैसे बोलते हैं ना कि ऑजी और जो इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग के जो एथलीट्स हैं, ओके, ये उनको फॉलो करता है. और इसका अपना कोच जो है वो भी उन एथलीट्स का कोच है जो कि यहाँ पर मतलब वर्ल्ड चैंपियंस हैं. oh alright, तो okay, हाँ, वो बंदा खुद मतलब ही इन्वेस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी. पावर लिफ्टिंग इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट. yes, of ठीक है ना. course. और मैंने ये नोट किया कि हर बंदा उठ के बोल रहा है भाई बेंच प्रेस लगा के, 2 डेडलिफ्ट लगा के, आई एम a fucking power lifter. No, you're not a fucking power lifter. ठीक है ना. तो just stop saying that. Just because तुम्हें cool लगना है इसका मतलब ये नहीं कि तुम power lifter बन गए हो, लिफ्ट कर रहे हो. True. First of all, you need to be, मतलब तुम्हें एक proper federation के साथ तुम्हें register होना चाहिए. तुम competition भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. क्या what do you mean? ये कह सकते हो कि मैं power lifting style पे training करता हूँ. That's fine. Don't call yourself a power lifter just because you're doing those 3 lifts. Like मुझे actually problem है उस चीज से यार, मुझे problem है. तो yes, shout out to my friend Jawad. आपने पूछा ना कि कौन है, तो वो जवाद है. Okay, because I know quite a few fitness trainers and athletes in Pakistan and Islamabad as well, so I thought I might just knew. अच्छा, अब जो आपकी फील्ड है that is so ruthless, अल्लाह की कसम मैंने कोशिश की है कि मैं भी कभी बार उठाऊं, but it's totally mind blowing और एकदम it takes you in a different zone, this specific field. But ये ऐसी field है कि it's risky as well. A lot of injuries can happen, and I'm sure that आप इस field में, you've been in this field for almost 3 years, and injuries लाजमी आई होंगी because ये field ही इतनी ruthless है. So I wanted to take your intake on injuries and how it is affecting you specifically as a woman right now. This is so true. But injury, whether it's powerlifting or bodybuilding, अगर जब आप obviously बात है, you're putting your body through so much. Obviously, you're going to get injured, right? Yeah. I think when I first started, because मैं पठान बंदी हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा emotional हूँ, ठीक है? तो back to back मैंने 3 competition किए, कोई rest नहीं लिया, और जिसे बोलते हैं ना कि mentality कि भाई मुझे तो सब कुछ पता है. Yeah. और ये चीज मैं लोगों में बहुत ज्यादा देखती हूँ. आई थिंक विद एक्सपीरियंस यू रियलाइज कि आपको कुछ भी नहीं पता, स्पेशली इस तरह की फील्ड्स में. लाइक देयर इज कांस्टेंट, मतलब कॉन्स्टेंटली न्यू चीजें आ रही हैं, न्यू रिसर्च हो रही है, न्यू टेक्निक्स आ रही हैं. So I think first of all you gotta have a very open mind. आप समझ रहे हो ना, मतलब आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए ना, वो बहुत ओपन होनी चाहिए. You should always be willing to learn. So coming back to injury, sorry, I get a bit sidetracked all the time. No, it's all right. तो जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया ना, वही बात है कि ईगो जो होती है ना, I feel like most of the times it's your ego, and when you're rushing through the whole process, you're putting a lot of pressure on yourself. That's when injuries actually occur. मुझे ऐसे personally लगता है. Obviously, other people may disagree, and I don't really give a shit if they disagree or agree. But that's my opinion. I love that you're so brutal. पता है ये इस तरह लोग बहुत कम मिलते हैं जो डायरेक्ट गोली मारते हैं. तो बस यार, बात तो सच ही है ना. बात सच है, किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, who gives a shit. ठीक है, मुझे पैसे नहीं मिल रहे किसी को खुश करने के लिए. तो वही बात है. और पता है क्या, मतलब मेरे अपने ऊपर भी यही सारी चीजें मतलब मैं अप्लाई करती हूँ. When I look back, it's so true कि जब मैं मतलब बहुत ज्यादा इगोइस्टिक थी और मेरा जो फोकस था वो ज्यादा यही था कि मैं इस बंदे से अच्छा परफॉर्म करूं या उस बंदे से अच्छा परफॉर्म करूं. मेरा फोकस मैं नहीं थी, और लोग थे फर्स्टली, जो कि बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है. और फिर जो मेरा कोच था लिंटन एट द टाइम, जो मुझे उस टाइम पर ट्रेन कर रहा था, उसने मुझे पहली चीज ये बोली है ना कि यू गॉट फोकस ऑन योरसेल्फ. यू कांट कंपेयर योरसेल्फ टू समवन who's been doing the same, like who's been part of the same sport for so long. That is so unfair. So यहाँ पर जो पावर लिफ्टिंग की कम्युनिटी है, it is so good. Like everyone is so supportive. क्योंकि वो हमेशा इस चीज में बिलीव करते हैं कि अपने आप को देखो. तो जब मैं कंपटीशन के लिए जाती भी हूँ और इतने पावरफुल लोग हैं कि मतलब जिसे बोलते हैं ना, सही जल्लाद होना, डायनासोर किस्म के, वो उठा रहे होते हैं, और मेरा ना, मुझे अपना आप छोटा सा फील हो रहा होता है, एंड देन वो आपको इनकरेज करते हैं. और ये चीज बहुत ज्यादा लैक होती है पाकिस्तान में. True. Oh my God.
इधर तो जिसे ऐसा है बोलते ना हैं कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो they're going to do everything to bring you down. समझ रही है ना कि मतलब they can't see you succeed in any such way because community ऐसी है. अच्छा, along with this, अब पाकिस्तान में specifically बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, इंडिविजुअल्स हैं इधर जो कर रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है देयर इज नो इनकम इन दिस फील्ड. आप जैसे आपने बोला है कि इतना पैसा लगता है, इतना पैसा लगता है कि बंदा की जेब खाली हो जाती है. तो इन ऑस्ट्रेलिया इज देयर एनी बेनिफिट कि आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं और you're specifically partnered with the gym collaboration scheme ही है that this is profitable to you and ये नहीं कि सारी जेब से पैसे लग रहे हैं. if I be honest with you, I actually don't make any money from powerlifting. Okay. I actually spend a lot of money. Okay. और जिसे बोलते हैं ना कि आपकी हॉबी होती है, किसी की क्या कपड़े खरीदना होती है, किसी की शॉपिंग होती है, किसी फलाना ढिमकाना, हर एक बंदे की कोई ना कोई हॉबी होती है. मेरी हॉबी पावर लिफ्टिंग है. और मैं देखती हूँ कि पावर लिफ्टर्स एक्चुअली डोंट मेक अ लॉट ऑफ मनी. They don't. क्योंकि बॉडी बिल्डिंग, yes, because then that way you can sell प्लान और फलाना ढिमकाना, एब्स निकल आएंगे, ये हो जाएगा, बूटी बिग हो जाएगी. सो मतलब वो एक आपको नजर आ रहा है ना. नॉट मेनी पीपल एक्चुअली फोकस ऑन स्ट्रेंथ. ये एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम तो नहीं है मना, लेकिन चलो हर बंदे का अपना एक शौक है, जिसे बोलते हैं ना कि ज्यादातर लोग जो है वो स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस नहीं करते. हाँ, अगर बॉडी अच्छी दिख रही है तो व्हाई नॉट. तो आई थिंक हाँ, तो अगर आप पाकिस्तान में हो तो यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, एज अ बॉडी बिल्डर यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी. पावर लिफ्टर्स कुछ एक बना रहे हैं यहाँ पर भी, मतलब बट यू गोटा बी एट द टॉप ऑफ योर गेम. जैसे बोलते हैं कि आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप में compete किया तब आप चार्ज कर सकते हो. Programs are actually very very expensive. So that way you can make money. Otherwise I don't think so. मैं मतलब अपने social media के through I make money because I've got like a big platform ये वो, but not specifically powerlifting. Okay, so I wanted to ask you about, अब देखें, you have such a huge and brilliant following, ठीक है ना, and most of your followers are Pakistani, and अब social media में when you become such a big star and when you have such a big platform for yourself, a lot of issues come along with it, ठीक है ना. You have haters, you have motivators. So what's your take on that? What's the most frequent question आपको लोग पूछते होंगे? Because मैंने देखा है आपका Instagram and your stories that you're pretty vocal, which is something new for us to see and which is very good as well. कि लोगों को ट्रक मुंह पे चमाट मार रही है जवाब दे दे के, समझ रही हैं? तो अब what's your take on that? What do you have to say to the haters and what do you want कि किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म को चलना चाहिए? अच्छा, जैसे मैं चाहती हूँ कि प्लेटफॉर्म वैसे चले, वैसे तो कभी भी नहीं होगा. इट्स इम्पॉसिबल. ठीक है. सोशल मीडिया बहुत अच्छा भी है और बुरा भी है. अच्छा इस लिहाज से कि मतलब आपकी रीच बहुत ज्यादा होती है. आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, आप बहुत लोगों से इंस्पायर हो सकते हो. कभी कभार मैं मतलब लेजी फील कर रही होती हूँ वो, फिर मैं देखती हूँ अली जो है मेरा फ्रेंड है, वो बॉडी बिल्डर है, वो लगा रहा है, जिम में है, एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छी डाइट है उसकी. मेरी और जो फ्रेंड्स है सारी जिनको मैं फॉलो करती हूँ, जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ, ठीक है ना. तो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है सोशल मीडिया से. दिस इज ट्रू. Of course, 101%. But at the same time, ये फप्पे कुटनियों के लिए बहुत आसान एक प्लेटफॉर्म है अपना फप्पे कुटना तोप निकालने के लिए. ये जो डेस्पराडोस घर में बैठे हुए हैं ना, जो अपने बाबा जानी से भी पॉकेट मनी दे दो, 10,000 रुपए हमें दे दो, ये जो बैठे हुए हैं ना फ्रस्ट्रेशन, फिर वो देखते हैं कि यार ये बंदी हो के, एक बंदा जब देख रहा था, और ये इवन बंदियां भी के, और ये मेरे साथ यहाँ पर भी होता है ऑस्ट्रेलिया में भी, वो फिर आपकी ना फप्पे कुटनियों की तरह जिसे बोलते हैं ना कि निकालेंगे कि यार इसने इतने लोगों में कंपटीशन किया, इतनी तो कोई स्ट्रांग नहीं, इससे ज्यादा स्ट्रांग कंपैरिजन अगेन, बिकॉज वो कोई ना कोई रीजन ढूंढेंगे just to bring you down. आपको ये बताने के लिए कि भाई तू कुछ भी नहीं है, दफा हो जा मना, तू कुछ भी नहीं है, तेरे से बेहतर. बट मतलब आप किसी भी फील्ड में होगे, हर बंदे से कोई ना कोई बेटर है, हर बंदे से किसी ना किसी, मतलब कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है. एंड आई एम एक्चुअली सो ग्लैड कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बिकॉज मेरी जर्नी लंबी है, मैं अपने प्रोसेस एंजॉय कर रही हूँ, मैं लर्न कर रही हूँ. True. जी, get what I'm saying. तो मैं तो जो बंदा, अक्सर लोग जो फेक प्रोफाइल से आते हैं ना, किम्मी पिम्मी करके ऐसे नाम डाल के, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि बड़ा सीधे सीधे आके बात करो, मर्द की तरह बात करो, तो फिर मैं तुम्हें जवाब देने को तो तैयार हूँ. लेकिन यार इन लोगों में जैसे बोलते हैं they've got no balls. समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? ये वो कौम है, ये अपने बाबा जानी की जो पॉकेट मनी के ऊपर, भीख के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है ना. एंड वही बात है कि फ्रस्ट्रेटेड है यार, इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि मैं क्या बताऊं, अल्लाह माफ करे. ये स्पेसिफिकली हमारी कौम का मसला है,
This is, I think, only related to बहुत ज्यादा Pakistan. तो इसका solution क्या है? यार। अगर बोले आप. बस फ्रस्ट्रेशन है, Yeah, फ्रस्ट्रेशन है। लोग अपने आप में बिलीव नहीं करते। आप समझ रहे हो मेरी बात को? और बिल्कुल. उनको बहुत एक जैसे बोलते हैं ना सेटिस्फैक्शन मिलती है, उनको अपना आप अच्छा लगता है जब वो किसी और को लाइक व्हेन दे ट्राई टू ब्रिंग समवन डाउन, Yeah, उनका फोकस वो खुद नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ जब कंपटीशन करती हूँ, मेरी आंखें फटी फटी रह जाती है, मेरा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, और वो ही बंदे मुझे कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं कि बेब यू आर डूइंग सो वेल, yeah, वाओ, हम इम्प्रेस हो गए। और मैं उनकी शक्ल की तरफ देख रही हूँ कि ये मतलब मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, बट दे जेन्युइनली मतलब वांट टू सी द होल स्पोर्ट ग्रो। yeah. पाकिस्तान में हाँ तूने इतना क्या लगा लिया, स्टेरॉइड लिया होगा, फलाना लिया होगा, ढिमकाना लिया होगा, बकवास ये बात तो है. वेट्स नकली हैं, ये वो, और वो भी फेक आईडी के पीछे। एक दिन ना आपको पाकिस्तान आके मीट एंड ग्रीट करना चाहिए और यही यही शक्लें होंगी. फिर उनको उधर ही मजा चखाना चाहिए कि व्हाट्सअप. हाँ यार, मैं तो रेडी बैठी हूँ रोस्ट ठीक है. करने के लिए। आई थिंक मुझे अपना रोस्टिंग शो होस्ट करना चाहिए। नहीं स्पेसिफिक वही ना. आई थिंक इंस्टाग्राम लाइव इज वेरी गुड. और जिस तरह आप करती हैं रोस्ट, वो मैंने देख लिया. वही ना, मैंने भी कहा था कि मैं ना बड़े तौर तरीके से आऊंगा कि मेरी कोई शामत वामत ना लगे बीच में. लेकिन नहीं नहीं, आई रिस्पेक्ट दैट, आई रिस्पेक्ट दैट. अच्छा, अब एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछना था आपसे. अब you know that powerlifting requires anabolic steroids, ठीक है ना? And as for a woman, you know, steroids, these are the things which I've heard, which I'm not completely sure about. Obviously आपको ज़्यादा information है इस चीज़ के बारे में कि you know, you can't have kids later on. Hormones आपके increase हो रहे होते हैं. And you know, what's your take specifically on that? अगर सही तरीके से किया जाए फिर effect नहीं होता, या at the end of the day ये ऐसी field है कि 110% it is required. So what's your take on that? पावर लिफ्टिंग जो है ना वो टाइम गेम है। अब हमारे यहाँ पर ना दुनिया में दो फेडरेशंस हैं। मैं छोटी मोटी तो और होंगी, लेकिन जो मेन फेडरेशंस है वो दो हैं। Yeah. जो मेन एक फेडरेशन है जिसमें मतलब आप ड्रग्स नहीं ले सकते हो, मतलब उसमें आप ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ये सारी चीजें नहीं ले सकते हो। दूसरी फेडरेशन है जिसमें आपको अलाउड है। Yeah. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक साइकिल किया हुआ है, मैं झूठ क्यों बोलूं, ठीक है? Of course. हाँ, तो मैंने किया हुआ है, लेकिन मैंने 3 अपने जो कॉम्पिटिशंस किए थे उसमें मैंने कोई स्टेरॉइड नहीं लिया था। ये चीज जब मैं अपना मसल मास गेन करने के लिए कोशिश कर रही थी, देन आई वेंट थ्रू अ होल साइकिल। Okay. तो क्योंकि मैंने दोनों तरह से ट्रेन किया हुआ है, मुझे पता है कि आप जो हो डेफिनेटली आप विदाउट स्टेरॉइड्स यू कैन, मतलब आप कर सकते हो, बट ये जो है बहुत ज्यादा टाइम लेता है। Yes. आप समझ रहे हो ना? Yes. विदाउट स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बॉडी के ऊपर इट्स बहुत ज्यादा हार्ड है। Yes. वेराज जब आप स्टेरॉइड्स करते हो, उफ अल्लाह क्या मजा आता है यार, ओहो हो। बात तो तो सही है. यार मैं बता नहीं सकती हूँ, पता नहीं लोगों को क्यों इतना इसके अगेंस्ट है। लाइक आपकी रिकवरी, आप समझ रहे हो ना, आप रिकवर करते हो, एंड यू जस्ट नीड टू बी लाइक यू नो वेरी स्मार्ट अबाउट इट। अपने ब्लड टेस्ट कराओ, मेक श्योर करो कि तुम सारे मिनरल्स ले रहे हो, ये वो फलाना ढिमकाना। लाइक आई गॉट अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम। Yeah. एक्चुअली मेरा यही प्रॉब्लम था कि मेरी बॉडी जो है ना वेट गेन नहीं करती है, गंदा वाला करती है, अच्छा वाला नहीं करती है। Okay. एंड क्योंकि मेरी जॉब जो है ना, लाइक आई वर्क फॉर अ बैंक, मैं लेंडिंग मैनेजर हूँ, तो मेरी जॉब जो है ना वो एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल है। Okay. और मसल के लिए स्ट्रेस जो है ना इट्स लाइक अ बिग नो नो। सो लास्ट ईयर मैंने एक साइकिल किया था अपने कुछ एक फ्रेंड्स वगैरह से पूछकर, जो कि मतलब बॉडी बिल्डर्स वगैरह हैं, तो उनके पास काफी ज्यादा नॉलेज है। Yeah. मैंने ना, और लाइक मुझे काफी ज्यादा मतलब उससे जिसे बोलते हैं कि मुझे डिफरेंस पता चला। आप समझ रहे हो ना, मतलब Yes. देयर इज बहुत आई लव, मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझे तो मजा आ गया था। नहीं, और पता है लोगों को एक जो मिसकंसेप्शन है, उनको लगता है जी थोड़े वजन उठा लिए, साइकिल कर लिया, ओ बॉडी बन गई, व्हिच इज देयर बिंग, ये जहालत है बेसिकली अगर बोलें। विद नहीं, बॉडी नहीं बनती। नहीं अभी बनती जैसे ना. मैंने एग्जैक्टली. जिम छोड़ दिया है एंड आई एम नॉट ऑन अ साइकिल, मेरे Yeah. तो ऐसे वेट पिघल रहा है, Yeah. और मुझे डिप्रेशन होता है इस चीज से, क्योंकि मतलब आई वांट, मतलब मुझे बिगड़ लगना अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल. अच्छा लगता है कि मेरे बड़े बड़े शोल्डर हों, इंटिमिडेट करूं लड़कों को, True. लेकिन नहीं, but I've seen your नहीं, build and अभी भी it's very impressive. आप अभी you're off season right now, right? कुछ भी नहीं, इवन ट्रेनिंग भी सही से नहीं चल रही है, कुछ भी अच्छा, नहीं है। इस सारी सिचुएशन की वजह से उधर भी सारे जिम्स वगैरह बंद हुए हुए हैं मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया. हाँ यार, क्या मनुष्यत हुई भी, इतना मेरा कसम से. मीटर हुआ है ना। कसम से मैं तो मैं रेकमेंड करूंगा एक पंचिंग बैग ले लें, और फिर वो भी, लेकिन इशू ये है कि कार्डियो होएगा, मसल लॉस होएगा, तो यू नो दैट्स नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन.
यार मैं कर रही हूँ कार्डियो बिकॉज थैंक गॉड हम लोगों को ना अलाउड है बाहर जाकर एक्सरसाइज करना, Okay. लाइक वेट नहीं, लेकिन मतलब यू कैन गो आउट फॉर अ रन। Yeah. एंड मैं मतलब आई एम नॉट वेरी सोशल, ऐसे लगता नहीं है, बट आई एम एक्चुअली नॉट अ सोशल पर्सन। Okay. तो लेकिन जब मेरा ये है कि जब भी मैं सुबह उठती हूँ, आई एम एक्चुअली वेरी मतलब मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। Okay. तो मुझे अपनी दिन की शुरुआत जो है ना वो थोड़ा सा मेरा बॉडी में ना, क्योंकि मुझे हमेशा से आदत रही है इस चीज की, तो ब्लड जो है वो फ्लो होना चाहिए। तो Yes. रिसेंटली आई स्टार्टेड मतलब आउटसाइड मैंने कार्डियो स्टार्ट किया, यार क्या मजा आ रहा है। हालांकि मैं कार्डियो वाली बंदी नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक अभी मैं चेंज हो रही हूँ, who knows क्या हो रहा है। Yeah. लेकिन आई एम रियली एंजॉयिंग दिस। और वो लेक इतनी खूबसूरत है, वो फ्रेश जिसे बोलते हैं ना, आप एयर ले रहे हो सुबह की, मतलब इतनी अच्छी शुरुआत हो रही है। फिर मैं वापस आती हूँ, अपना जिम करती हूँ, मतलब जो भी हल्का फुल्का वेट्स। Yeah. तो इट्स हेल्पिंग मी आई थिंक मोर मेंटली देन एनीथिंग एल्स। हालांकि मेरा सब कुछ पिघल रहा है, बट कुछ भी नहीं हो सकता, वापस जिम जब स्टार्ट होगा तभी होगा जो भी होना है। Yeah, of course. Acha, और अब I want to get to your, ask about your plans. अब now you've been training hard, you've been, you're so dedicated. वो नजर आता है आपकी performance से. अब what is your future plan? कि सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो आप weight division में you're competing, what weight division is that, or what weight division are you planning to compete in or gain muscle for that? मैं 57 से 63 की कैटेगरी में होती हूँ। Okay. लेकिन जब मैं 57 की होती हूँ, बिकॉज आई एम 5'6" लाइक टॉल, Yeah. जब मैं 57 किलो की होती हूँ ना, तो मैं एक्सट्रीमली स्किनी लगती हूँ, जिसमें मैं Okay. अपने आप को खुद एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। मतलब अपने Okay. आप से भी प्यार होना चाहिए ना, बंदा देखे बिल्कुल। अपने आप को तो बंदा बोले हाय तेरे पे दिल आ गया मरियम, वो वाला सीन नहीं होता। वो ज्यादा स्किनी लगती है ना, तो मैं अपने आप को कबूल ही नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मुझे 63 की कैटेगरी में अपना सब कुछ अच्छा लगता है, लाइक ठीक है मेरे थोड़ी थाइज वाइज हैं, सब कुछ बॉडी शॉडी है, शोल्डर वगैरह हैं। Yeah. तो मेरा इरादा ये है कि मैं 63 में compete करूं। Okay. In saying that जब मैं ऑफ सीजन होती हूँ ना, जब तक अगर by off season I mean when I'm not preparing for a competition, Yeah. तब मैं अपने आप को कभी वे नहीं करती हूँ। अगर आप मुझसे भी पूछो कि मतलब मेरा क्या वेट है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा वेट गिर रहा है, क्योंकि आई एम नाउ मतलब मैं साइज 8 के कपड़े पहन रही हूँ। यूजुअली जब मतलब मैं लास्ट ईयर थी तो आई वाज वेयरिंग साइज 12। Okay. तो हाँ बस यही है यार। And what's your training routine like? मतलब कि on a daily basis, do you train 2 times a day? Do you train 3 times a day? What specifically do you focus at? आपको training regimen कैसे है? मैं हमेशा मॉर्निंग पर्सन हूँ। अगर Okay. मेरी मॉर्निंग की ट्रेनिंग मिस हो गई है, I'll never be able to train later that day. हो ही नहीं Okay. सकता, चाहे मैं कुछ भी ना करूँ, बस मैंने मॉर्निंग में करनी है। ठीक है। पहली बात, नॉर्मली जब अब ये कोविड-19 की मनूसत नहीं थी, तो मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, सुबह 4 बजे जिम में होती हूँ। Okay. फिर 4 That से is dedication. 7 That is dedication. I बहुत love कम it, to लोग be हैं, honest, like बहुत कम लोग होते हैं जो ये कर obsession. सकते This हैं। is like my obsession. Like there बिल्कुल, is no other word for it. Like this is my बिल्कुल, obsession. बिल्कुल। And so from 4 to 6:45 मैं ट्रेन करती हूँ, ठीक है। एंड देन और क्योंकि जब मैं स्पेशली पावर लिफ्टिंग के लिए पावर लिफ्टिंग स्टाइल ट्रेन कर रही होती है ना, तो यू हैव लॉन्ग ब्रेक्स। आपकी जो रेस्ट पीरियड होती है ना वो लॉन्ग होती है। Recovery, yes. एंड सो फिर मैं उसके बाद मतलब वापस आती हूँ, घर आती हूँ, रेडी होती हूँ, फिर बैंक जाती मतलब काम पर जाती हूँ। Okay. एंड देन डिपेंड करते मेरा काम किस टाइम खत्म होता है। कभी कभार मैं घर मतलब 8:30 भी घर पर नहीं होती हूँ। Okay. एंड देन द मिनट आई कम बैक होम, मैं क्रैश करती हूँ, सोती हूँ, एंड दैट्स इट, लाइक अगेन लाइक अ रोबोट। मेरी सेम रूटीन है। Okay, okay. नहीं, obviously इसी तरह success achieve होती है, but what you want to do is you want to, your plan is to become the best in the world in this specific field, yes? इंशाल्लाह। बट एक बात बताऊं, जैसे एक टाइम पे ना मेरा पावर लिफ्टिंग से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था, लाइक पावर लिफ्टिंग अभी भी है, लाइक दैट्स माय फर्स्ट लव। Yeah. बट एट द सेम टाइम आई एम इन लविंग बॉडी बिल्डिंग। आप समझ Okay. रहे हो ना? Yes, Like, yes, yes. because we can now see the changes. So I think for a bit I'm going to focus on building some, मतलब जैसे बोलते हैं ना, transforming my body. Okay, yes. That's मेरा also बेटा a तो very छोटा good है, why option. not do it? हाँ. True, And true. to be honest, that sort of helps you with then with your strength as well. Yeah, तो I of think course. switching, हाँ, पता है प्रॉब्लम ये था ना कि एक टाइम पर कुछ 5-6 साल तक मैं बस डेडलिफ्ट करती रही, और इतना डेडलिफ्ट किया ना कि मैं बोर हो गई। तो जब मैं अब कितने महीने हो गए हैं कि जब मैं जिम जाती हूँ तो मैंने डेडलिफ्ट नहीं किया, स्क्वाट नहीं किया। ना मैं स्क्वाट करती हूँ ना मैं डेडलिफ्ट करती हूँ। ऐसे ना जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा एक चीज खा लो तो उल्टी आती है, तो मेरा वो वाला सीन हो गया था। And I was like, what the hell's wrong with me? What the fuck is going on? Yeah. And then I was like, to be honest, that's fine. My body is bored. That's okay. Who cares?
right? Do something else. And then मैंने अली से बात, अली रजा को आप जानते हो? इस्लामाबाद बेस्ड है? नहीं, he's actually in Melbourne. Okay. And अभी मतलब काफी मतलब he's very popular जो भी है, like but Okay. he's got a lot of knowledge as well. Popular Alright. होना एक चीज होती है, उसके पास बिल्कुल. knowledge भी बहुत है. And then I was talking to Ali, and Ali ने बोला यार body बनाओ, ये करो, वो करो, फलाना ढिमकाना. And powerlifting is very hard on your body. Like recovery में, even if you are taking steroids, मतलब काफी, it's very hard on your body. You're always like, you know, maxing out. तो मैं ना उससे exhaust हो गई थी. I actually felt exhausted, और मैं training enjoy नहीं कर सक रही थी. And what's the point if you're not enjoying it, right? So फिर उसने मुझे बोला ना switch it up a little bit. मैंने switch किया. That's when I started my cycle. First time. Okay. So yeah, and then मतलब I switched it up a little bit. और आपने जैसे पहले क्वेश्चन किए ना कि ये मतलब औरत को मर्द बना देता है, यार मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई औरत मैंने देखी नहीं कभी, ये देख लो माशाल्लाह. सही बात है. तो औरत को मर्द नहीं बनाता, औरत ही लगती है. बिल्कुल. True. Okay. अच्छा, and aims and goals तो अब हमने cover कर लिए हैं कि you know you want now basically what you're thinking is कि आपने अब थोड़ा सा transition लेना है just to get the mind off of this entire situation. अच्छा, now you're such a big influencer, ठीक है ना? And you know इतने ज़्यादा rising athletes है पाकिस्तान में who are working hard, लेकिन उनको इतने issues face हो रहे हैं. जैसे हमारी एक पहली फीमेल मार्शल आर्टिस्ट है जो वन चैंपियनशिप में लड़ रही है. You know, we have boxers, we have tennis players, squash players, we also have a weightlifter as well, power lifter as well, Rabia Shahzad in Karachi. तो आपका उन लोगों के लिए क्या मैसेज होएगा? You know, कि they obviously look at you and they're like, you know, we want to be like her, we want to get on her stage, we want to have a platform like her. आप ऐसे rising athletes को, ऐसे लोगों को क्या advice देंगी to, you know, achieve what you have achieved? आवाज कट रही है. Hello, अब आ रही है? आवाज कट रही है. अच्छा, एक सेकंड. अच्छा, तो आप ये पूछ रहे हो कि मेरा मैसेज क्या है उनको? Like, yeah, to all these rising athletes of Pakistan. Hello, can you hear me now? I feel like लोग जो है ना हमेशा, yeah, I can hear you. Okay. देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ. पाकिस्तान में जब भी मेरी किसी बंदे के साथ बात हुई है ना, they've been extremely negative. Okay. They've been extremely negative. और वो हमेशा सिचुएशन को, इस बंदे को, उस बंदे को हमेशा ब्लेम करते हैं. आप समझ रहे हो मेरी बात को? And I'm actually a big believer of having that positive mindset, even if things are impossible. Exactly. Right? No matter कितने भी आपकी जिंदगी में hurdles हैं. Yeah. I'm a big believer कि जो आप whatever you're putting out there, that will come back to you. Yes. And मैं नोट करती हूँ कि ये लोग हमेशा ना किसी चीज को blame game खेल रहे हैं. Yeah. मेरे लिए it's never been like it hasn't been easier for me मतलब as well. इनको लगता है ना जैसे आपने एक बंदी का नाम लिया, मैं उसका नाम नहीं लूंगी. Yeah. उसने तो जिसे बोलते हैं ना अपना मिशन बना लिया था, मुझे अपने सर के ऊपर से सवार किया हुआ था. और वो एक और बंदे को पूरे उसकी मैंने टेक्स्ट कॉन्वर्सेशन देखी है, मरियम तो आंटी है, मरियम तो ऐसी है, मरियम तो वैसी है, कोई लिफ्ट नहीं है, पूरा स्टॉकर जिसे नहीं बोलते हैं. यही कराची वाली जिसका आपने नाम लिया, उसके तो मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं मेरे बारे में जो उसने पूरी वो की हुई है. She has that obsession about me. आप समझ रहे हो मेरी बात को? Yeah. Anyway, so coming back to the point, first of all, your focus should be yourself, nobody else. Okay. आपका फोकस आप खुद हो. समझ रहे हो ना? Yeah. My focus has always been me. Yes. And like मैं obsessed हूँ अपने आप से और होना पड़ता है. If you want to get somewhere in your मतलब कहाँ पर भी, if you want to get anywhere, you need to be obsessed. अपने passion से, हर चीज से. Yeah. And क्योंकि आपसे ज्यादा आपके passion में कोई और बिलीव नहीं कर सकता. पहली बात. True. मेरे यहाँ पर फैमिली नहीं है, मतलब I have to सिर्फ एक चीज नहीं, हर चीज मुझे देखनी पड़ती है. इनके तो माँ बाप भी हैं, सब कुछ है, थके हारे घर आते हैं, खाना रेडी मिलता है, हर चीज रेडी मिलती है. उन्होंने वो टेंशन किस बात की है? True. जिसे बोलते हैं. ठीक है. और दूसरी बात ये कि आपको YouTube के ऊपर आप पैसा लगाओ. अगर पैसे नहीं तो यार मैं क्या कर सकती हूँ, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ ना. But at the end of the day, मतलब आप अच्छी ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्ट करो. मैं भी इन्वेस्ट कर रही हूँ. ये पैसे मैं किसी और भी लगा सकती हूँ, बट आई इन्वेस्ट इसके ऊपर क्योंकि मुझे शौक है. True. आप समझ रहे हो? तो पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि चाहे आप लोग यहाँ पर हो या चाहे आप पाकिस्तान में हो, प्रॉब्लम्स तो होते हैं. नथिंग इज इजी. मतलब कोई लाइफ में यार कोई हलवा थोड़ी ना कि आपको मिल जाएगा ऐसे ही प्लेट के बीच में. किसी को कुछ भी आसानी से नहीं मिलता.
True. इन लोगों को लगता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ ना तो सब कुछ मुझे आसानी से मिलता है, मैं सुबह उठती हूँ और बस वो स्टूपिड सब कुछ हो माइंडसेट है जाता ना है। इनकी वो छोटी सोच है जो मतलब बेसिकली आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ कि इनका वो हाँ, ब्रॉड तो पर्सपेक्टिव ये ही नहीं है। हमेशा देखो, एंड यू नो व्हाई ये इस तरह से क्यों है? मैंने कितनी मतलब वाई बोला है, हाय अल्लाह क्या हो गया मरियम? तो इसका रीजन ये है कि अगेन इनका फोकस ये लोग खुद नहीं है। भाई मैं आंटी हूँ, उसी बंदी को मैसेज दे रही हूँ, मैं आंटी हूँ कि मैं नानी हूँ कि मैं दादी हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ है? Do you get what I'm saying? Yeah, Like the why are you comparison, so, ये comparison yeah, ना, why? yeah, they can't see anyone. इसका मतलब यही है कि ये लोग जो है, और बहुत से लोग जो है ना वो इसलिए करते हैं ना कि वो फेमस हो जाएं। Yeah, समझ आई आपको? yeah. बहुत से लोग इसलिए नहीं करते कि दे आर पैशनेट अबाउट इट। Yeah, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे मेडल मिले कि ना मिले, yeah. मैं कभी भी उस नियत के साथ गई नहीं हूँ कम्पीट करने के लिए कि भाई मुझे मेडल जीतना है। और जब Yeah. मीडिया मुझसे ये क्वेश्चन करता है ना कि नेक्स्ट टाइम तुम गोल्ड मेडल लाओगी, तो मुझे मेरा मीटर घूम जाता है कि भाई तुम लोग एफर्ट को नहीं देख रहे हो, वही ना, मतलब एफर्ट को देखो। exactly. नहीं, it's I completely understand, and वही ना, you should just अब क्या बोलूँ, haters को दफा करें पहली बार, ठीक है ना? Again, focus on yourself. Exactly. Karachi wali, focus on yourself. And अच्छा, हाँ, that's positive mindset I want to see. Mariam, it was so amazing talking to you and getting to know you. And this is a platform to many सारे athletes Pakistan के लिए, and whoever is representing Pakistan in one way or the other, मैंने उनके लिए खोला है. I've had many individuals on in my studio. This is my studio ka setup. And the next time you come to Pakistan, I would love to have you, on my studio, on my show, properly podcast pe. And it was such a good experience listening to your story, listening to your output, and everything you had to say. I wish you nothing but the best in the coming future. Thank you so much. And it's going to be an honor for me to have you on the studio as well. It's based in Islamabad, and whenever you'll be in town, मैं आपको दुम्बे की कढ़ाई खिलाने लेके जाऊंगा, especially because you're from KPK, and I know obviously you would love that, ठीक है ना? और वो ट्रेनिंग में भी फिर काम आएगा, तो we'll get that done as well. And it was an honor having you. Inshallah. And I'm going to release the episode. Thank you so much for having me. Yeah. No. It was an honor. I swear it was an honor. I had a lovely conversation. You're so energetic. You're so fun. And I hope we can do this again, but next time in person, live in studio. Inshallah, done. Yeah. Done ho gaya. All right, Mariam. Take care. Thank you for your time. Be well. And I'm going to end the podcast now. Thank you. Take care. Bye-bye. No worries. Thank you so much. Bye-bye. Allah Hafiz.